اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت 8ویں مضمون اردو اور موضوع ہے نظم خاک وطن کی مسجد۔ بچوں چلو شروع کرتے ہیں ہمارا 10واں سبق جو ہماری نکات اول میں آتا ہے۔ آج ہمیں اس کی کتابی مشق کرنی ہے۔ چلیے، سب سے پہلا سوال ہے فرہنگ، یعنی کہ ہمیں الفاظ کے معنی کرنے ہیں۔ پہلا ہے دشت و دمن۔ دشت و دمن کا مطلب ہے بچوں جنگل، بیاباں، ویران۔ سرخرو اس کا مطلب ہے کامیاب۔ لہکنا، لہکنا مینز، لہکنا کے معنی چہکنا، یعنی کہ نغمہ سرا ہونا، گنگنانا خوشی سے، ٹھیک ہے، گنگنانا۔ پینگ، جھولے کا لمبا جھونک یا جھولے کی رسی۔ دمکنا، دمکنا کا مطلب ہے چمکنا۔ شاباش، تو یہ تھا فرہنگ پہلا سوال۔ دشت و دمن، جنگل بیابان، سرخرو کامیاب، لہکنا چہکنا یا نغمہ سرا ہونا، یعنی کہ اپنی سریلی آواز میں گنگنانا۔ پینگ، جھولے کی رسی، دمکنا کا مطلب ہے چمکنا۔ دوسرا سوال لکھا ہے سوالات، یعنی کہ یہاں پہ کچھ سوالات ہیں، ہمیں ان کے جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ امن کو شاعر کیوں ضروری قرار دیتا ہے؟ بچوں، اگر امن نہیں ہوگا تو کسی بھی ملک، کسی بھی قوم کی ترقی ناممکن ہوتی ہے نا؟ تو امن کے بغیر کسی بھی ملک یا کسی بھی قوم کے لیے ترقی پانا ناممکن ہوتا ہے۔ امن زندگی کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ امن اور سکون کے بغیر زندگی گزارنا زندگی گزارنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ تو اس لیے شاعر صاحب نے امن کو ضروری قرار دیا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ شاعر وطن کی کن چیزوں سے شاعر محبت کا اظہار کرتا ہے؟ شاباش، یہ تو آپ نے پڑھا ہے کہ شاعر اپنے وطن کی کن کن چیزوں سے محبت کا یہ اظہار کرتا ہے۔ شاعر تو اپنے وطن کی عمارات سے، اپنے وطن کی روایات سے، جنگلوں بیابان سے، شہروں گاؤں غرض ہر ایک چیز سے شاعر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ گاؤں کے ناموں، شہروں کے ناموں، درختوں، پیڑوں اور پیڑوں کی چھاؤں سے بھی شاعر صاحب محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور شاعر صاحب نے اپنے وطن کی صبح اور شاموں کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر ایک چیز سے وہ معمولی گھاس کا تنکا کیوں نہیں ہو، وہ اپنے وطن کی ہر ایک چیز سے پیار اور محبت کرتا ہے۔ پھر اور ایک سوال ہے کہ شاعر کو کون کون سے تہوار پسند ہے جن کی سدا منائے جانے کی وہ دعا مانگتا ہے؟ بچوں، شاعر صاحب کو دیوالی اور عید جیسے تہوار پسند ہے، اور یہ انہی دو تہواروں کے سدا منائے جانے کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ میرے ملک میں عید اور دیوالی جیسے تہوار ہے، مقدس تہوار ہے، یہ ہمیشہ اسی محبت اور بھائی چارے سے میرے ملک میں منائے جانے چاہیے، ٹھیک ہے، شاباش۔ پھر ہے اور ایک سوال کہ فتح پور سیکری کے محل، تاج اور اجنتا کی کیا اہمیت ہے؟ یہ شاعر صاحب نے سوال دیا ہے کہ فتح سیکری کے محل، تاج اور اجنتا کی کیا اہمیت ہے؟ بچے، میں آج آپ کو ان تینوں کے بارے میں مفصل بتاؤں گی۔ دیکھیے، یہ ہے فتح پور سیکری۔ بچوں، یہ جو فتح پور سیکری ہے نا، یہ بھارت کے صوبے اتر پردیش میں واقع ایک شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اتر پردیش میں یہ ایک شہر ہے جس کا نام ہے فتح پور سیکری۔ بچوں، یہ شہر ضلع آگرہ کا ایک حصہ ہے اور اس کی تعمیر مغل شہنشاہ اکبر نے 1570 عیسوی میں شروع کی، یعنی کہ انہوں نے اس شہر کو 1570 عیسوی میں بنایا، اور یہ شہر پھر 1571 عیسوی سے 1585 عیسوی تک
मुग़ल सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा है, यानी कि ये राजधानी थी, इसी में बादशाह बैठता था। तो 1570 ईस्वी में मुग़ल शहंशाह अकबर ने इसको बनाया। फिर उन्होंने 1571 ईस्वी को इसको अपना दारुल हुकूमत बनाया, यानी कि उन्होंने 1571 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक इसको अपने मुल्क का दारुल हुकूमत इस शहर को बनाया। कहते हैं कि इस मतलब शहर की बाक़ियात में से मस्जिदें और महल आलमी सकाफ़ती विरसा करार दिए जा चुके हैं। आजकल मतलब इस शहर में जो बाकी मस्जिदें रही हैं ना, मस्जिदें हैं या महल है, अब वो मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस जो उनको बना दिया गया है। और ये शहर अब ये फ़तेहपुर सीकरी जो है ये सयाहत के लिए बहुत ही मशहूर हैं। जब मुग़ल बादशाह अकबर ने इस शहर को फ़तह किया तब फिर उन्होंने इसका नाम फ़तेहपुर रख दिया, यानी कि हमने इस शहर को फ़तह किया है, जीत लिया है, हासिल किया है, तो लिहाजा फिर उन्होंने इसका नाम फ़तेहपुर रख दिया है। तो ये था बच्चों फ़तेहपुर सीकरी के बारे में। अब है दूसरा ताज महल। देखिए ये यहाँ पे मैंने ताज महल की तस्वीर ली है। तो ताज महल भी आप जानते हैं कि ये ताज महल है मकबरा मलिक मुमताज़ महल, जो ज़ौजा थी यानी कि बीवी थी शाही जहाँ की, ठीक है। तो ये ताज महल यानी मकबरे मुमताज़ महल जो बीवी है शाही जहाँ की, ये भारत के शहर आगरा में संगमरमर से बनी एक खूबसूरत अजीम शान इमारत है। यानी कि ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी सफ़ेद मतलब संगमरमर से बनी है। और इसको मुग़ल शहंशाह शाही जहाँ ने अपनी बीवी की मोहब्बत की लाफानी यादगार के तौर पर दरियाई जमुना के किनारे पर बनाया था। यानी कि जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ था उसको अपनी बीवी मुमताज़ महल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा वो प्यार उसको करता था। तो फिर जब फिर उसने मतलब इंतकाल किया, जब वो फिर इस दुनिया से चली गई, तो वहीं पे आगरा में ये दरियाई जमुना बहुत बड़ा दरिया बहता है। तो उसी दरियाई जमुना के किनारे, उसी दरियाई जमुना के साहिल पर शाहजहाँ ने अपनी इस बीवी की मोहब्बत के लिए एक बहुत बड़ा मतलब ये मकबरा बनाया और इसको तामीर किया, इसको संगमरमर से बहुत अच्छा खूबसूरत बनाया। तब ये आज भी वहाँ पे खड़ा अपनी शान व शौकत ज़ाहिर कर रहा है। शाबाश। तो ताज महल बच्चों अपने फ़न तामीर की खूबियों और ख़ुसूसियतों की बिना पर पूरे दुनिया में यानी कि दुनिया भर में मारूफ़ व मशहूर है और अजायबाती आलम में मशहूर है, यानी कि दुनिया के अजूबों में मतलब इसका शुमार आता है। तो ये मकबरा किसका है? ये मुमताज़ महल का मकबरा है जो बीवी थी शाहजहाँ की, और शाहजहाँ को इससे अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो उसने उसके लिए ये ताज महल तामीर करवाया। ठीक है। तो ताज महल के बाद क्या है बच्चों? अजंता। तो ये इसकी अहमियत है, ये ताज महल की अहमियत है। ठीक है। तो अब है अजंता। देखिए बच्चों, ये है अजंता केव्स यानी कि अजंता के गार। देखिए ये गार ये पहाड़ों के अंदर बनाए गए गार है। देखिए मैं पहले आपको यहाँ से ये दिखाऊंगी, आप देखेंगे। फिर ये इन गारों को पहाड़ों को तराश कर बना दिया गया है। देखिए फिर अंदर कैसे हैं गार, ये लगते हैं कि ये पहाड़ों के अंदर है। ये चट्टानों को मतलब काट कर बना दिया गया लगता है। देखिए यहाँ पे भी। अच्छा, अब है अजंता के गार। बच्चों ये अजंता के गार जो है ना, ये औरंगाबाद मगरबी हिंदुस्तान का एक छोटा शहर है जो अजंता के गारों के लिए बहुत ही मशहूर है, पूरे दुनिया भर में मशहूर है। बच्चों पहाड़ों और चट्टानों को काट कर ये 30 गार बनाए गए हैं। और ये बच्चों ये गार क्या है? ये 30 गार बुद्ध मज़हब की अज़मत को बयान करते हैं। और बच्चों इसमें महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी के पूरे हालात, पूरे वाक़ात
इन दीवारों पे लिखे गए हैं और दीवारों को अंदर से इतना पुररौनक बना दिया गया है कि इंसान ये सोच भी नहीं सकता है कि हम किसी गार के अंदर हम पहाड़ों के अंदर हैं और हम गारों में बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे गारों की दीवारें हैं ना, वो चमकती दमकती है। तो उन्हीं गारों की दीवारों में महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी के हालात और उनकी मजहबी अफकार व ख़यालात लिखे हुए हैं। यानी कि ये जो गार हैं, ये अजंता के गार है, ये महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी के हालात और उनके मजहबी ख़यालात, मजहबी सोच व फ़िक्र के तर्जुमान हैं। तो बच्चों, ये था ये वाला सवाल जो शायर साहब ने हमसे पूछा था कि सीकरी के महल और ताज और अजंता की अहमियत क्या है। तो ये मैंने आपको इनकी मतलब अहमियत से वाकिफ़ करा दिया। अब है लास्ट वाला सवाल, फितरत के किन मनाज़िरों से शायर मुतासिर है। शायर साहब फितरत के किन मनाज़िर से मुतासिर हुआ है। तो इसका जवाब भी ये है कि शायर साहब हरे लहलहाते खेतों, हसीन वादियों, महकते हुए सब्ज़ मैदानों, है ना, तो आम के बागों, दान के खेतों और इसके मुल्क में जो ये रस्म व रिवाज है, तो उससे वो मुतासिर हुआ है। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपने अच्छे से समझा होगा और आपने इसको आप इसको अपने नोटबुक में कलमबंद भी करेंगे। तो कल फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।